time to welcome Swami Shailendra Ji and Ma Amrit Priya. Very global namaste to you from Bharat, and from UK now Global we move to namaste. Bharat. A very good evening as well. And So we have Amrita, because Swami Shailendra is not only Osho's young brother, but he's now a very prominent and eminent guru as well. Dhruv, say hello live to Swami Shailendra and Ma Amrit Priya, please. Jai Shri Ram. Global Namaste, Jai Shri Ram. And Swami, Amrita will facilitate your connection with Dhruv. He is a very good trendsetter over here. Have got several thousands of followers in a Shyam group where Riddhi, our host, is, and Dhruv, our resident spiritual contributor, is. So it'll be nice to connect and expand each other's diaspora and knowledge as well. So this was just to have a good introduction directly live over here. Over to you, Amrita and Swami. Thank you, Neil Kumar. Thank you very much. So, Swamiji, today is Ram Navami, and for all those viewers who are watching us for the first time, I would like to say a few lines of Swamiji. Swami Shailendra Ji is younger brother of Osho, and he joined the Osho's Neo Sannyas movement in 1971. He went to Rajneeshpuram in Oregon, USA in 1981 and lived there for 1985. Swami again went to Osho Commune in Pune and was there with his brother in the last days. And since then, his discourses are available in various channels and Astha, and innumerable books, as well as CDs and video. And since 2019 onwards, his work has been taken a new vision through Osho Fragrance, which he has been practicing as well as following. And let's hear from him what message he has on Ram Navami. A very warm welcome to you again, Ma Amrit Priya and Swami Shailendra Ji. Namaskar. So I will request Ma Amrit Priya to sing a song, a devotional song of Sant Gulal, a very, very famous Sant from Uttar Pradesh. And this song gives the message which everybody should follow. So I request Ma Priya. This is a devotional song, and in this auspicious occasion of Ram Navami, I'm going to sing this song on soundtrack. So every saint has sung Mahima of Ram in unique way. तो संत गुलाल जो गाए हुए हैं, तन में राम तोरे तन में राम, ये बॉडी टेम्पल है और इसी में राम का वास है. आगे की जो इसकी जो भावार्थ होगा वो स्वामी जी बताएंगे. मैं सॉन्ग गाऊंगी ट्रैक में. आप सब लोग जब कोरस गाएगा तो आप सबका साथ का स्वागत है. आप सब भी गाइएगा. आई वेलकम यू ऑल टू सिंग. व्हेन एवर कोरस सिंग्स तन में राम तोरे तन में राम, वी ऑल विल सिंग. ओके. तन मेरा, तन मेरा, तोरे तन मेरा, तन मेरा 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 और कित जाए घर बैठल बैठल रघुराय. तन मेरा तोरे तन मेरा, तन मेरा तोरे तन मेरा, तन मेरा तोरे तन मेरा.
तन में राम तोरे तन में राम, तन में राम तोरे तन में राम, तन में राम तोरे तन में राम। लोक पूजा वही घर घर धाय, दो जग कारण भीस्त गवाए। लोक पूजा वही घर घर धाय, दो जग कारण भीस्त गवाए। सुन नाग मनुष्य अवतार, बिन हरि भजन न पावहि पार। तन में राम तोरे तन में राम, तन में राम तोरे तन में राम। Everybody please तन sing में राम तोरे तन in the में chorus. राम। तन में राम तोरे तन में राम, तन में राम तोरे तन में राम, तन में राम तोरे तन में राम, तन में राम तोरे तन में राम। अब की बेर जो जानो भाई, अवधि बीते कछु हाथ नाई। अब की बेर जो जानो भाई, अवधि बीते कछु हाथ नाई। सदा सुखद निज जानो राम, कह गुलाल न तो जमपुर धाम। तन में राम तोरे तन में राम, तन में राम तोरे तन में राम, तन में राम तोरे तन में राम। तन में राम तोरे तन में राम, 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 तन में राम तोरे तन में राम। Now I will explain this devotional song in very simple words. Tan mein Ram, tore tan mein Ram. The God exists in your body. Do not search it outside. तन में राम और कित जाए, घर बैठल भेटल रघुराए। भगवान हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। कहते हैं ना, रोम रोम में बसने वाले राम। बाहर मंदिर में तीर्थ स्थान में खोजने की जरूरत नहीं है। संत गुलाल कहते हैं, तन में राम और कित जाए, तू और कहाँ जा रहा है। घर बैठल भेंटल रघुराय। रघुराय से मिलने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे बैठे अपने ही घट में, अपने ही तन में, अपने ही मन के भीतर अपनी आत्मा में डूबो, ध्यान करो, वहाँ राम से मिलन होगा। जोगी जति बहुभेष बनावे, आपन मनवा नहीं समझावे। कहते हैं कितने ही जोगी लोग हैं, योगी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। जोगी जति बहुभेष बनावे, भांति भांति के वस्त्र धारण करते हैं, जटाजूट बढ़ाते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन इन सब आडंबरों से राम नहीं मिलता। आपन मनुआ नहीं समझावे। ये सारे क्रियाकांड तो करते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं समझाते। असली बात थी, अपने मन को समझाना था कि वह बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट ना होकर अंतर्मुखी हो जाए, इंट्रोवर्ट हो जाए, क्योंकि राम तो भीतर है। तो अपने ही भीतर ध्यान मगन होना होगा, मन को अपने समझाना होगा कि वह स्वयं से दूर दूर ना जाए, अपने पर ही वापस लौट आए। जापान के जैन फकीर इसको कहते हैं रिटर्निंग टू द सोर्स। वो जो हमारे भीतर चैतन्य रूपी राम विराजमान है, वो प्रत्याहार करें, प्रतिक्रमण करें और स्वयं पर वापस लौट आए। ये ऐसे ही जैसे कोई गंगा की धार उल्टी बहने लगे और सागर की तरफ न जाकर गंगोत्री की ओर जाने लगे।
क्योंकि राम तो वहीं मिलेंगे ना जहां हैं। हम बाहर खोजेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे, आज तक कभी किसी को नहीं मिले। एक सूफी फकीर स्त्री हुई है राबिया। एक शाम वह अपनी झोंपड़ी के बाहर कुछ खोज रही थी। रास्ते से कुछ लोग निकले, उन्होंने कहा, माँ आप क्या ढूंढ रही हैं, हम कुछ मदद करें? उस वृद्ध स्त्री ने कहा कि मेरी सुई, कपड़ा सिलने की नीडल गुम गई है, उसको खोज रही हूँ। वे लोग भी मदद करने लगे, लेकिन शाम होती जा रही थी, अंधेरा होने लगा। एक व्यक्ति ने कहा कि सुई छोटी सी चीज है, इतने बड़े सड़क पर कहाँ खोजेंगे, एग्जैक्टली बताओ कहाँ गिरी है, लोकेशन। राबिया ने कहा, बेटा ये ना पूछो, क्योंकि गिरी तो वो झोंपड़ी के भीतर है। वे लोग सब रुक गए, हंसने लगे, कहा कि तुम बुढ़ापे में पागल हो गई हो क्या? यदि सुई झोंपड़ी के भीतर गुमी है तो सड़क पे कैसे मिलेगी बाहर? फिर राबिया जोर से हंसी और उसने कहा कि तुम बताओ, तुम जिस परमात्मा को, शांति को, आनंद को खोज रहे हो, मुक्ति को तलाश रहे हो, उसे तुमने कहाँ खोया? मंदिर में, किसी नदी के तट पर, किसी तीर्थ स्थान में? कहाँ खोया था राम को? वह तुम्हारे भीतर विराजमान है, अपने भीतर जाओ। आगे संत गुलाल कहते हैं, पूजहि पत्थल जल को ध्यान, खोजत दूर रही कहत पिसान। लोग पत्थर की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और इसी को ध्यान समझ लेते हैं। बड़ी भूल हो जाती है। वे एक उपमा देते हैं पिसान कह के। पिसान का मतलब होता है गेहूं का पिसा हुआ रूप, आटा। खोजत धूर ही कहत पिसान, धूल उठा ली है, धूल को खोज लिया है और उसको तुम अगर आटा समझ के खाने लगोगे, रोटी पकाने लगोगे, इससे पोषण नहीं मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी। संत कबीर भी यही बात कहते हैं। दूसरे शब्दों में गौर से सुनना, साधो देखो जग बौराना, साँच कहे तो मारन धावे, झूठ कहे पति आना। बहुत मिले मोहि नैमी धर्मी, प्रातः करें स्नाना। आत्म छोड़ पाषाणे पूजें, तिनका थोथा ज्ञाना। अर्थात सारी दुनिया असत्य से राजी है, पत्थर पूज रही है, स्नान और व्रत कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, नेम धर रही है, अर्थात नियमों का पालन कर रही है, लेकिन भीतर राम को नहीं खोज रही। इस संदर्भ में ओशो की एक अद्भुत किताब है, आत्म पूजा उपनिषद। जो 108 उपनिषद हैं उनमें से सबसे छोटा उपनिषद है आत्म पूजा उपनिषद। अत्यंत सार गर्भित, अंग्रेजी में ओरिजिनल डिस्कोर्स सीरीज है, उसका नाम है द अल्टीमेट अल्केमी। ओशो की किताबें अथवा ऑडियो oshoworld.com की वेबसाइट से और oshofragrance.org वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। संत गुलाल आगे कहते हैं, लोग पुजावहीं घर घर धाए, दोजक कारण भिस्त गवाए। लोगों से अपनी पूजा करवाने के लिए पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी घर घर जाते हैं, दोजक कारण भिस्त गवाए। उनका अहंकार तो पुष्ट हो जाता है, लोग उन्हें आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, उनके चरण छूते हैं, लेकिन ये लोग स्वयं ही राम नाम का मर्म नहीं जानते। वे दूसरों को क्या बताएंगे? दोजक कारण भिस्त गंवाए, जैसे कोई नरक पाने के लिए स्वर्ग को गंवा दे, कौड़ी के लिए हीरे को त्याग दे, अहंकार के लिए ओंकार को इन्होंने भुला दिया है, राम रतन धन को गंवा दिया है। यह राम रतन धन शब्द संत मीराबाई ने उपयोग किया था। वे जिंदगी भर कृष्ण की पूजा करती रहीं और विरह में तड़फती रहीं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, लेकिन प्रभु के दर्शन ना हुए। फिर उनका मिलन हुआ सदगुरु संत रैदास से। संत रैदास ने उन्हें राम नाम का ज्ञान दिया, अर्थात अपने ही घट के भीतर गूंज रही उस राम जैसी ध्वनि से, जिसको हम ओंकार भी कह सकते हैं, ओम भी कह सकते हैं, प्रणव कहते हैं, उससे परिचय कराया। और तब मीराबाई नाच उठी, गा उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। गुरु की करुणा से राम से परिचय हुआ, वहां से मिलन की शुरुआत हुई। इसके पहले विरह था। राम नाम को जानकर मीराबाई के जीवन में आनंद और उत्सव की घड़ी आ गई। गुलाल जी आगे कहते हैं, सुर नर नाग
मानुष अवतार बिन हरि भजन न पावई पार। चाहे कोई मनुष्य हो कि शेषनाग हो कि कोई मानुष रूप में अवतरित हुआ परमात्मा का अवतार हो, कोई भी हो, जब तक कोई भीतर गूंज रहे निरंतर हरि भजन में, उस राम नाम में प्रेम पूर्वक नहीं डूबता है, उसका ध्यान नहीं करता है, तब तक वह भाव सागर को पार नहीं कर सकता। अब की बेर जो जानहु भाई, अवधि बिते कछु हाथ न आई। जिंदगी खिसकती जा रही है, हर सांस हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है, इसलिए भीतर मुड़ो, राम को पहचानो, वरना कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। अधिकांश लोगों को मृत्यु के क्षण में पता चलता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है मुट्ठी बंद रहती है, वृद्ध जब मरता है मुट्ठी भी खुल जाती है। वो भ्रम भी टूट गया, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं। संत रहीम खान खाना हुए हैं, यद्यपि मुस्लिम थे फिर भी उन्होंने राम नाम की महिमा कही है। कहते हैं राम नाम जान्यो नहीं भई पूजा में हानि। जिसने भीतर के राम नाम को ना जाना, उसकी पूजा प्रार्थना ध्यान उपवास त्याग तपस्या में केवल हानि ही हानि है, कोई लाभ नहीं है। इस भजन की अंतिम पंक्ति में संत गुलाल कहते हैं, सदा सुखद निज जानहु राम, कहे गुलाल ना तो जमपुर धाम। राम को जानना सदा सुखदाई है, सदा सुखद। निज जानहु राम, निज के भीतर जानो राम को, परमानंद मिल जाएगा, परम शांति मिल जाएगी। एक प्यारा ग्रंथ है शिव सूत्र, जिसमें भगवान शिव पहला ही सूत्र देते हैं, चैतन्य आत्मा है। वो जो हमारे भीतर कॉन्शसनेस है, केवल वही हमारी है, उसके अतिरिक्त कुछ भी हमारा नहीं है। और इस चैतन्य में राम नाम की गूंज हो रही है। इस राम की ध्वनि को जिसने सुन लिया, उसने अमृत तत्व को जान लिया। वरना कहे गुलाल ना तो जमपुर धाम, अन्यथा जमपुर धाम अर्थात मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप सबने कहानी सुनी होगी नचिकेता की, कि उसके पिता ने नाराज होकर उसको यमराज को दे दिया। यमराज उसकी लगन देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उसको वरदान दिए, कहा कि मांग ले, मैं बहुत खुश हूं, जो मांगना चाहे। नचिकेता ने कहा कि मुझे वही बताएं जिसको जानकर फिर मृत्यु नहीं होती। आप तो यमराज हैं, मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु के पार क्या है वह बताएं। और जानते हो कठोपनिषद का सार सूत्र क्या है? यमराज ने नचिकेता को क्या बताया? यम ने कहा, सुनो गौर से, बहुत संक्षेप में केवल एक अक्षर में बताता हूं, वह रहस्य है अमृत तत्व का, ओम। हम ओम को ही राम भी कह सकते हैं, नाम भी कह सकते हैं। हमारे भीतर एक अनाहत नाद, अनस्ट्रक साउंड, एक सेलेस्टियल म्यूजिक लगातार गूंज रहा है। याद रखना, राम का नाम अयोध्या वाले राम से भी ज्यादा पुराना है। तभी तो सम्राट दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा। भगवान राम के पहले एक और अवतार हो चुके हैं, परशुराम। उनका नाम भी राम था, लेकिन वो हमेशा फरसा लिए घूमते थे, तो उनका नाम धीरे धीरे फरसा पर से फरसा वाले राम, शार्ट में परशुराम हो गया। जैसे अयोध्या वाले राम को हम धनुर्धारी राम कहते हैं, ऐसे ही परशुराम। तो राम नाम अत्यंत प्राचीन है। विष्णु सहस्त्र नाम नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख है। यह परमात्मा का एक नाम है। और इसको क्यों कहा जाता है कि राम नाम सत्य है? क्योंकि यह शाश्वत है, सनातन है। प्रत्येक व्यक्ति के घट में, उसके तन में, मन में, उसके अंतरतम प्राणों में यह निरंतर संगीत गूंज रहा है। इसकी ध्वनि थोड़ी थोड़ी राम से मिलती जुलती है, थोड़ी थोड़ी नाम से मिलती जुलती है, थोड़ी थोड़ी ओम से मिलती जुलती है। एग्जैक्टली इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन हम उस अनहद नाद का उच्चारण तो कर नहीं सकते। तो जो क्लोजेस्ट, निकटतम शब्द आता है वो राम या ओम है। इसलिए राम नाम की इतनी महिमा। आपने सुना होगा, कुछ संत कहते हैं कि तुझसे बड़ा तेरा नाम रे। परमात्मा से भी ज्यादा बड़ा उसका नाम है, क्योंकि इस राम नाम में डूबकर हम परमात्मा को
परम राम को पा सकते हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ माँ प्रिया जी से एक छोटा सा मेडिटेशन का प्रयोग हमें कराएं ताकि हम राम नाम में डूब सकें। माँ प्रिया। Beloved friends, we are going to practice this small meditation. First step is we will be breathing in Ram Naam, rhythmic breathing. जब राम नाम का एक म्यूजिक चलेगा उसमें एक्सेल करना है थोड़ा सा फोर्स के साथ और पूरा मजा लेते हुए, जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, जस्ट लाइक भस्त्रिका प्राणायाम, लाइक दिस। ओके, और सेकंड स्टेप आएगा उसमें वी विल बी सिंगिंग नाम सिमर राम सिमर बावरे। दिस इज ए कीर्तन फॉर 3 minutes। तो हम सब क्लैपिंग करेंगे। जब हम क्लैपिंग करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से हृदय पर आ जाती है, हार्ट पर आ जाती है, और हृदय ही द्वार है राम को जानने का। तो क्लैपिंग करेंगे सेकंड स्टेप में, एंड इन थर्ड स्टेप वी विल बी राम नाम का जाप करेंगे और अपने भीतर प्रवेश करेंगे ध्यान में। तो आइए। Then we can do without music, just breathing for 3 minutes. Kindly, Fast yes, and deep please. breathing without music. Please, thank Ma you. will be singing Ram Ram and I will be breathing. ठीक है, Everybody okay. please breathe with me. ओके। राम नाम बोलो 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 राम 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 राम बोलो 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 राम। Now second step we will be singing Ram Simar Bavre, Naam Simar Bavre. Everybody will be clapping in this kirtan. राम सिमर बावरे, नाम सिमर बावरे, नाम सिमर बावरे, नाम सिमर बावरे, नाम सिमर बावरे। Clapping, swinging and swaying. Enjoy the music. You may close your eyes.
सिमर बाबरे राम सिमर बाबरे राम सिमर बाबरे राम सिमर बाबरे नाम 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 सिमर बाबरे राम सिमर बाबरे नाम 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 सिमर बाबरे। Now in the third step, Mahapriya will repeat, chant Ram, 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 Ram 4 times. During that time we will exhale. Then there will be gap of about 5 seconds. In that gap, we will inhale slowly, softly, gently, being alert, fully aware of the breathing process, listening to the sound of breath, and slowly, slowly, we will focus our attention on listening inside. So for a few minutes, we will chant, repeat the mantra Ram, and then we will stop chanting and listen. Inside, the Ram Naam is echoing. There will be no music. Ram, 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 Ram. Now time to inhale slowly. Ram, 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 Ram. सांस भीतर लीजिए, फिर राम राम कहते हुए छोड़िए. Ram, Ram, Ram. Inhale, Ram, exhale, Ram, and repeat Ram. Ram. Ram, 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 Ram. Do it with great awareness, Ram, Ram, very Ram, lovingly, Ram. with feeling of devotion. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Now only Mahapriya will say, we will not Ram, repeat. No more Ram, chanting. Ram, Ram. Just follow the rhythmical breathing. Ram, Exhale. Ram, Ram, Ram. Inhale. Ram, Exhale and listen. Ram, Ram, Do not chant Ram. anymore. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Listen to the sound of your breath. Ram, 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 Ram.
राम 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 Now the volume of Ma Priya's chanting will be lower. You have to listen with more awareness. Ram 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 Now last time. Ram 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 Ram. Now listen inside, close your eyes. Is there any sound echoing within your being? Something very similar to Ram. To some people, it may appear like the sound of Om. For next 3 minutes, forget about the whole world. Just listen. मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, यही है वह राम रतन धन जो संत रविदास ने मीराबाई को बताया था। This is the silent music of consciousness, the soundless sound. यही है वह शाश्वत और सनातन राम जो प्रत्येक के भीतर अंतरात्मा में विराजमान है। इसको सुनते सुनते गहरी ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है, समाधि लग जाती है, सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। अंतिम 1 मिनट। अपने दोनों हाथ जोड़ लें। स्वयं के भीतर विराजमान प्रभु राम को मन ही मन प्रणाम करें। जय श्री राम। धीरे धीरे आंखें खोलें। जय श्री राम। आप सब लोगों ने लगन पूर्वक
मेडिटेशन का प्रयोग किया। आप सबके भीतर विराजमान प्रभु राम को प्रणाम नमन करता करते हैं, हूँ। प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी एंड माँ अमृत प्रिया, इट हैड बीन रियली वेरी नाइस। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। आपकी मेडिटेशन, आपका स्वर, आपकी साधना, वो सभी चीजें दर्शा रही थी जो कि एक डिवोटी को चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। It has been so soothing and I can feel the aura all around with all our viewers who have been listening us globally around each and every country definitely must have felt the energy which has been reflected from Osho Fragrance through Swami Shailendra ji and Ma Amrit Priya, the way And they have Amrita, been reciting Rama. I will just tell my mobile number so you can send message to me on WhatsApp. My number is with Indian code 0091 70 273 27372. I will repeat in Hindi. 70 273 273 72. Easy to remember. So you can send me message. If you need any book, audio discourse, video discourse of Osho, his photographs, or the bhajan we were singing now, and Ma Amrit Priya has sung more than 2,000 devotional songs. Everything is available on Google link. So whatever you need, please give me a message or email me. My email address is swamishalan@gmail.com. So I will be happy to provide you everything free of cost. Thank you very much. Jai Shri Ram.